So today I will start with this subject, economics for managers, right? And in this, the first topic is introduction to economics, right? This, the first two PPTs are of this year only, right? And this is of your faculty तानिया सिंह, जिनको भी तानिया सिंह faculty है, उनका ही PPT है, ये साल का ही है. So I will teach from this two files, and I have my PPT also, right? But that is little different. But the common topics I will use this PPT also. And there is one textbook. This is of SYJC 12th standard textbook, Maharashtra board, right? In this also, this demand analysis, elasticity of demand, micro and macro, supply analysis, this all topic in this book, the language is very easy to understand. Those who want to understand, na? So few topics in the upcoming lectures I will be teaching from this textbook also, right? So today I will start with the basic. First is the introduction to managerial economics. What is economics, micro versus macroeconomics? What is managerial economics? Economics and managerial decision making and nature and scope of managerial economics. This is all theory. This is just for knowledge purpose. इसमें से कुछ micro versus macro and nature and scope भी ज़्यादा important है for theory part A, right? What is economics? Commerce students ने तो economics पढ़ा है, but many of you are maybe science also. So what is economics? Economics is the study of how individual and society choose to use the scarce resources that nature and the previous generation have provided and of the results of those choices for society. Economics क्या है? Studying the whole economy and even the individual. Study of individuals, groups and the whole economy also. And what are scarce resources? What are resources? Resources means whatever we have in our economy. If we want to produce, so there must be land, labor. If we want to do farming, so there must be land. जो food agriculture हमें करना है तो farming चाहिए agriculture के लिए, farming के लिए land चाहिए, right sir? तो therefore resources मतलब जो भी land, labor, capital एक economy में है, उसको हम कैसे यूज करते हैं ताकि पूरे सोसाइटी का, पूरे इकोनॉमी का मैक्सिमम फायदा हो, राइट? दैट इज इकोनॉमिक्स. जो रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड नहीं है, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो, इंडिया हो, यूएस हो और एनी द वर्ल्ड इकोनॉमी. तो वर्ल्ड रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केयर, एंड द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट स्केयर्स आर कॉल्ड फ्री गुड्स. जो स्केयर्स नहीं है वो तो फ्री गुड्स हो जाता है, जो स्केयर्स है उसको हम इकोनॉमिक गुड्स बोलते हैं. हवा वो तो फ्री है, राइट, क्योंकि वो स्केयर्स नहीं है. बट यस, लैंड, लेबर, वाटर एंड एवरीथिंग इज स्केयर्स. वी कैन यूज एनीथिंग अप टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. So how to use that for the benefit of the society? So we have to allocate the scarce resources. कि जो resources है उसमें तीन क्वेश्चन मेन होते हैं इकोनॉमिक्स में ना. तीन क्वेश्चन मेन होते हैं: व्हाट, व्हेन एंड हाउ. यानी जो रिसोर्सेज है उससे क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है. ये क्वेश्चन के आंसर हमें इकोनॉमिक्स से ढूंढने होते हैं. तो एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज. Scarce resources are those resources which have more demand and limited supply. जैसे कि जो wants होती है human being की, that is unlimited. Wants are unlimited, right? Means to fulfill this wants are limited and scarce. तो resources जो है वो limited and scarce हो. Even हम individual हो, एक nation हो, एक city हो, एक group हो, सबके wants unlimited होते हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड है. यानी आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स, बिकॉज आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 15 years,
तो पहले जितना आईफोन स्टूडेंट्स के पास नहीं होता था, आजकल मोर देन 50% स्टूडेंट्स, and not only postgraduate students, even the junior college or senior college students own iPhone. 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास आजकल आईफोन होता है, ऐसा मेरा रिसर्च है. इन द पास्ट 5 years the purchase of iPhone has increased among youngsters than it was previous. तो जो वॉन्ट्स होती है वो अनलिमिटेड है, यानी जो आईफोन है दैट इज नॉट अ want, right? मतलब want है लेकिन that is not a necessity. That is not a necessity. But to buy an iPhone you need obviously money. पैसा तो सबके पास limited है. Means have alternate uses, और पैसा है भी तो उसका alternate use भी है कि 1 लाख का आईफोन नहीं लेके दो, आजकल तो 50, 60, 70 में भी आता है. But if you don't use that money to buy an iPhone, you can what? For other purpose you can use that money. There are alternative uses. So the problem is कि what choice we have to make. ये तो एक इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया, तो पूरे इकोनॉमी में भी कोई भी रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेटिव यूज होता है. तो प्रॉब्लम आती है, फार्मर के पास लैंड है तो उसको ये डिसाइड करना है कि उसको उस लैंड पे क्या ग्रो करना है, राइट? हमारे पास पैसा है तो हमें ये डिसाइड करना है उसको कैसे, कहाँ, कितना खर्चा करना है. तो इकोनॉमिक्स क्या है? एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज अमॉन्ग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. तो जितने भी अलग अलग चॉइसेस है, तो सारे चॉइस पहले तो बेसिक नेसेसिटी, यानी तुम्हारे पास पैसा है तो उससे डायरेक्ट ये तो नहीं ना कि पूरा सैलरी से हमने आईफोन ही ले लिया. पहले तो हमारा बेसिक नेसेसिटी हम पूरा करते हैं, जो क्या होता है, फूड, शेल्टर, है ना, एंड ऑल दिस आर नेसेसरी. क्लोथ्स, रोटी, कपड़ा, मकान. उसके बाद तो वो तो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा, वो ऑल्टरनेटिव तो कंपलसरी है. तो वी विल लर्न दैट ओनली इन इकोनॉमिक्स. ठीक है ना? दिस यू हैव टू रिमेंबर. जस्ट we will discuss the topic scarcity in detail also, because that topic is also important. Now the economics is being divided into two broad divisions, microeconomics and macroeconomics. इसका मीनिंग सबको पता ही होना चाहिए. Being an economics student and being you are doing a postgraduate diploma course, this, so you should know the meaning. Here it is written also. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जो इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करता है. माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, एक कंज्यूमर, एक हाउसहोल्ड, एक फर्म, एक प्रोडक्ट. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द ईच इंडिविजुअल यूनिट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक डील्स or studies the overall economic system. इकोनॉमिक सिस्टम यानी जैसे कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल का इनकम, कि दिनेश सर का इनकम कितना है, वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करेगा. और मैक्रो इकोनॉमिक क्या स्टडी करेगा? इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका एवरेज इनकम क्या है या उनका टोटल इनकम क्या है, दैट इज नेशनल इनकम. इंडिविजुअल इनकम, नेशनल इनकम, price of an individual product, overall consumer price index or wholesale price index of all the products, right? So that is the major difference. It deals with the whole economy. It deals with the aggregates. Aggregate का मतलब total, and it deals with only one individual. So this is the major difference, and this you will get in more easy language in this book also. इसमें भी रहेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, टू मेजर ब्रांच है, and from where this is derived. So microeconomics deals with a small part of the national economics. It studies the action and behavior of individual units. Individual consumer, individual producer, price of a commodity, like that. And then the macroeconomics is also there. What is macroeconomics? So macroeconomics,
that studies the entire economy, total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings. और एक इंडिविजुअल का that is micro, right? Now, what is managerial economics? Because now you are studying postgraduate, so managerial economics is not a traditional concept; it is a modern concept. Manager is a person who directs resources to achieve a stated goal, and he or she has the responsibility. बिजनेस के मैनेजर होते हैं, राइट? इंस्टीट्यूट्स के मैनेजर होते हैं, कॉर्पोरेट्स के मैनेजर होते हैं. तो मैनेजर कौन है? जो रिसोर्सेज है उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे एलोकेट करना है, ताकि जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है वो कंपनी के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए वो एक्शन ले और वो फुलफिल कर सके. So managerial economics is concerned with the application of economic principles and methods to the decision-making process when the firm or organization under the conditions of uncertainty. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है हमने देखा, और वैसे ही मैनेजर जो रिसोर्सेज को मैनेज करता है. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या हो गया कि इकोनॉमिक प्रिंसिपल और इकोनॉमिक मेथड्स को डिसीजन मेकिंग में अप्लाई करना. जब मैनेजर को डिसीजन लेना है तो उसको इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए डिसीजन लेना जब भी कोई अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है. So that is your managerial economics. Here few definitions are given. You can learn any one definition of managerial economics from here, right? So managerial economics, what is the scope? Or managerial economics deals with what? Management problems, decision science. It is the study of functional area, accounting, finance and marketing. Managerial economics deals with the optimal decision. Optimal का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स में optimal बार बार वर्ड आएगा. तो here optimal means the best decision, जिससे maximum benefit हो. इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है मैनेजरियल इकोनॉमिक में, and it is based on economic theory. So these are the few features or scope. So features of managerial economic: microeconomic character. See, managerial economic is like microeconomics. Why? Because एक मैनेजर है, वो एक फर्म का मैनेजर है, तो वो सिर्फ उस फर्म के लिए डिसीजन लेगा. तो बिकॉज इट यूनिट्स ऑफ स्टडी इज अ फर्म, एक सिंगल फर्म है, पूरे इंडिया की फर्म नहीं है. However, it always takes the help of macroeconomics to understand and adjust to the environment. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी नॉलेज जरूरी है अगर हमें एक फर्म को भी मैनेज करना है. तो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, जीडीपी क्या आ रहा है इंडिया का, एवरीथिंग वन मैनेजर हैज टू अवेयर अबाउट. So its character is of microeconomics. The second feature of managerial economics is choice and allocation. Choice and allocation means what? कि managerial economics को alternatives में से choice करना है कि best alternative क्या है. मैनेजर को ये डिसाइड करना है इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई करके कि हमारे फर्म के लिए बेस्ट क्या है. जो भी स्केयर रिसोर्सेज है उसको इस तरह एलोकेट करो, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसमें उसको एलोकेट करो, राइट. देन गोल ओरिएंटेड. तो मैनेजर जो है वो गोल होता है, एम होता है हर बिजनेस का, हर फर्म का, हर ऑर्गेनाइजेशन का. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक इज गोल ओरिएंटेड एंड पर्सपेक्टिव. इट डील्स विद हाउ डिसीजन शुड बी फॉर्मुलेटेड बाय मैनेजर्स टू अचीव द गोल. तो गोल अचीव करने के लिए क्या डिसीजन लेना चाहिए और कौन से डिसीजन से क्या होगा, दैट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक है, वो चॉइस एंड एलोकेशन करना पड़ता है, गोल ओरिएंटेड है. देन कॉन्सेप्चुअल एंड मेट्रिकल. कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इट इज रैशनल, लॉजिकल. ऐसे नहीं है कि तुक्के में डिसीजन ले लिया. कोई कॉन्सेप्ट, कोई लॉजिकल डिसीजन लिया जाता है ना, ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग, कंसीडर्स
hard and careful thinking about the nature of the particular problem to be solved. So managerial economics provide necessary concepts to achieve that. There is a logical application of various tools. The next is it is normative. Normative economics यानी ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स नहीं है. डिफरेंस क्या है देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टडीज इकोनॉमिक बिहेवियर विदाउट मेकिंग जजमेंट. पॉजिटिव इकोनॉमिक वो होता है कि हम जजमेंट नहीं करते, हम बिहेवियर को डायरेक्टली स्टडी करते हैं. जैसे कि मैंने मॉल में गया और मॉल में देखा कि ये शॉप में 10 लोग जा रहे हैं, तो वो लोग क्या देख रहे हैं, कितना खरीद के जा रहे हैं, कितना नहीं जा रहे, तो हम सिर्फ उन लोगों का बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं. दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. चाहे कोई सिर्फ विंडो शॉपिंग करके जा रहा है, 1 घंटा काफी वो सेल्समैन से बातें कर रहा है, काफी प्रोडक्ट देख रहा है, फिर भी कुछ खरीद के नहीं जा रहा है, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ देखेंगे और ऐसे सर्वे में लिखेंगे कि हाँ कितने जन ऐसे गए, और हम जज नहीं करेंगे. लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम जजमेंट भी करते हैं कि व्हाट शुड बी डन. तो हम जज करेंगे कि यार ये तो ऐसे टाइम पास वाले कंज्यूमर है जिनको शॉपिंग करनी नहीं थी, ऐसे आके चला गया, खाली उसको ऐसे टाइम पास ही करना था. बट हो सकता है इसको खरीदना हो, बट उसने नहीं खरीदा हो, मे बी इसको पसंद नहीं आया हो, रेट ज्यादा लगा हो, बट वी कैन जज एनीथिंग. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज ऑन वैल्यू जजमेंट. ये तो मैंने एक इंडिविजुअल का बताया, तो ये एक फर्म का. तो जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो नॉर्मेटिव है, बिकॉज व्हेन मैनेजर टेक्स द डिसीजन टू सॉल्व एनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इट इज ऑल्सो जज कि वो डिसीजन सही था, गलत था, फर्म के बेटरमेंट के लिए था कि नहीं, उस डिसीजन का कोई वैल्यू है कि नहीं. देन इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी. मल्टीडिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या होता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में सब कुछ आ जाता है. ऑल द डिसिप्लिन्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, all the resources, all the departments, right? Multidisciplinary and managerial economics is applied in all the firms, whether it is an educational institution or a corporate firm or a bank or anything, right? So these are the 6 features of managerial economics. So definition and features of managerial economics पढ़ना जरूरी है. ये तुम लोग पढ़ लेना, ये आ सकता है डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. जैसे कि क्या होता है देखो, मार्केटिंग होता है, तो मार्केटिंग में डिमांड कितना है, प्राइस इलास्टिसिटी कितना है, उसके बेसिस पे मार्केटिंग का डिसीजन लिया जाता है. फाइनेंस है, तो फाइनेंस का जो मैनेजर होगा वो क्या देखेगा कि बजट कितना है, कैपिटल बजटिंग, ब्रेक इवन कहाँ होगा. स्ट्रेटेजी वाला मैनेजर है, वो टाइप ऑफ कंपटीशन देखेगा कि और कौन हमारे कॉम्पिटिटर्स है, परफॉर्मेंस क्या है, और जो अकाउंटिंग है वो ये देखेंगे कि रिलेवेंट कॉस्ट बेनिफिट, कि जो कॉस्ट और बेनिफिट है उसको भी हम एनालाइज करेंगे. तो सब में ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स काम आता है इन ऑल द डिपार्टमेंट. इसके लिए हमने इसको मल्टी डिसिप्लिनरी भी बोला है. स्कोप क्या है, ये तो फीचर्स था. फीचर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स. और स्कोप क्या होता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या काम करेगी, क्या काम करती है. तो ये क्या करेगी, इट प्रोवाइड्स एन एडवांस एनालिटिकल इंसाइट टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको और एनालिटिकल वे में एडवांस लेवल में इंसाइट देती है और उसको अचीव करने के लिए काम करती है. डिमांड एनालिसिस और फोरकास्टिंग, क्योंकि एक फर्म है तो डिमांड को एनालाइज करके फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट करने में हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, कि प्रोडक्शन कितना करना है, कॉस्ट क्या होगा प्रोडक्शन का. प्राइसिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या रखना है. मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, बहुत सारे मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली. तो व्हाट इज द मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑल. एंड मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज हम ला सकते हैं फर्म के सक्सेस के लिए. ये सब काम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स
ये सब में हेल्प करती है। अब जो फर्म है उसका नेचर क्या है? फर्म क्या है? फर्म क्या होता है? एक कंपनी क्या होती है? कोई भी बिजनेस फर्म है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स चलाते हैं ना मिलके एक फर्म को, चाहे वो एम्प्लॉय है, चाहे सीईओ है, चाहे मैनेजर है, राइट, चाहे सिक्योरिटी गार्ड भी है। तो ऑल द इंडिविजुअल्स together make a firm who run the firm, who have organized themselves. So the major objectives of the firm are what? सारे इंडिविजुअल मिलके क्या करेंगे? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, हमारे फर्म का गोल है, उसको अचीव करना। टू मैक्सिमाइज द आउटपुट, कि आउटपुट मैक्सिमाइज हो, सेल्स मैक्सिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, कस्टमर और जितने भी स्टेक होल्डर है उनका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज हो, और मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न, और जो शेयर होल्डर ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हुए उनको ज्यादा रिटर्न मिले, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा से ज्यादा ग्रो, राइट। वॉट एवर वी डू, एक फर्म है ना कुछ भी, अभी मेरा भी एक फर्म है मानसी ट्यूटोरियल्स, राइट। तो व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव? आई एम टीचिंग इन फ्री, so my objective is to reach the maximum students, right? And my goal, present goal, as you all know, I have created a YouTube channel. My present goal is 1000 students of IBS in WhatsApp group and in YouTube channel who can take benefit. Out of 1500 students, my goal is that at least 1000 students take benefit of this, because last year only 900 plus students had joined. But last year I had not created YouTube channel and last year recording was also not there. तो जो स्टूडेंट ने लेक्चर मिस कर दिया उसका तो मिस ही हो जाता था, उनका तो अटेंडेंस ज्यादा होता था। मतलब डेली 150-200 लोग तो अटेंड करते ही थे, और एग्जाम के टाइम पे तो 600 लोग लाइव लेक्चर अटेंड करते थे, बिकॉज देयर वाज नो रिकॉर्डिंग, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द रिकॉर्डिंग, आई डिडंट हैव गूगल मीट पेड वर्जन और एनीथिंग, राइट। और मैंने जब डाला तो मैंने मेरा लास्ट ईयर टारगेट वाज नॉट 900, माय टारगेट वाज कि हाँ 400 500 उसके पहले आए थे, उतने स्टूडेंट्स फ्री में ज्वाइन हो जाएंगे लाइव लेक्चर्स। कभी रिकॉर्डिंग का सोचा ही नहीं, बट क्योंकि 900 में से इतने लोगों का मिस हो जाता था, उन लोग ने मन में बोला सर आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे तो बेटर है, एवरीवन कैन नॉट अटेंड द लेक्चर। तो उसमें टाइम लगा 1-2 महीना कि कैसे होता है, क्या खर्चा आता है, व्हाट वी कैन डू, हाउ वी कैन मैनेज, व्हाट स्टूडेंट्स कैन टेक, इसमें से क्या खर्चा स्टूडेंट बेयर कर सकते हैं, तो व्हाट हाउ वी कैन डू। देन इट वर्कड आउट and it's still working there in Sem 3 and we are working on it, how to improve it, right? So you all also will come about me slowly as you come across, and many other students will come across. And if you know any seniors of the last year, so obviously most of the students will be knowing me, your seniors might knowing, will be aware about my lectures or my name. So there is goal of any organization. Like my immediate goal is what? 1000, है ना, maximum output कि maximum students benefit ले, because if I am putting some efforts, so जितने लोगों को benefit मिलेगा अच्छा है ना। मतलब if I am teaching, so you all should be satisfied. यानी last year also teaching is my passion, I said. So it's not कि मेरा teaching करके मेरे को खुशी मिलती है, नहीं। After the exam, when out of 900, 250 students ने मुझे पर्सनल में मैसेज किया लास्ट ईयर, एंड दे रोट बिग मैसेज एंड उन्होंने थैंक यू बोला कि बिकॉज ऑफ यू सर माय पेपर वेंट वेल, आई स्कोर्ड गुड, आई मतलब, तो दैट इज द हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन that cannot be explained in words. That is a feeling which cannot be explained in words. So there are various goals, but obviously जो businesses होते हैं उनका क्या होता है? प्रॉफिट भी होता है, राइट। ऑब्वियसली माय आल्सो देयर, यस सब्सक्राइबर आएंगे यूट्यूब पे, यूट्यूब से अर्निंग भी होता है, आई डोंट नो हाउ एंड ऑल, बट यस 1000 सब्सक्राइबर एंड समथिंग 4000 आवर्स व्यूज के बाद समथिंग वी हैव टू फिल फॉर्म एंड अप्लाई, so maybe it might give some monetary benefit also in the future. That is uncertain. But business organization, when you are
a manager of any business firm, तो बिजनेस का तो एम ही होता है प्रॉफिट मेकिंग, डिमांड डिसीजन लेना, प्रॉफिट डिसीजन लेना, प्रोडक्शन डिसीजन लेना, प्राइस क्या रखना है, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेरियस डिसीजंस एंड ऑल, राइट? So all these decisions have to be taken by the manager, and it involves economics. It involves the help of the economics. Without the knowledge of economics, you cannot take the decision. How? ये पूरा सेम 1 खत्म होते होते पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे हेल्प करती है डिसीजन में, डिमांड एनालिसिस कैसे हेल्प करती है डिसीजन में, सप्लाई एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर. There are various topics. How all this helps in the decision making of a firm that you will study in this semester 1. Questions a manager must answer. What are the economic conditions in a particular market? Market structure क्या है? अब मार्केट स्ट्रक्चर भी हम पढ़ने वाले हैं. डिमांड सप्लाई क्या होता है, डिमांड सप्लाई कंडीशन क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है जो फील्ड में हमारी कंपनी काम कर रही है, इंटरनेशनल कंडीशंस क्या है. अभी जैसे इंटरनेशनली ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, तो अगर हमारा क्रूड ऑयल से रिलेटेड कोई फर्म है तो ऑब्वियसली उसके प्राइस शूट अप हो रहे हैं, गोल्ड सिल्वर के प्राइस शूट अप हो रहे हैं. So what will be the future conditions? What are the macroeconomic factors which will affect our firm? ये सबके आंसर एक मैनेजर को पता होने चाहिए, तो ही वो डिसीजन ले सकता है. तुम मैनेजर हो, तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस ही गवर्नमेंट की नहीं पता है, तो हाउ विल यू मैनेज दैट फर्म? Should our firm be in this business? If so, what price and output level achieve our goals? How can we maintain a competitive advantage? अगर हमारे competitors है तो उनसे हमारा advantage कैसे होगा, right? Over other competitors. तो cost leaders, क्योंकि हर जगह competition है ना. अभी जैसे even we buy a SIM, so there are 4-5 companies, Vodafone, Idea, then Jio, Airtel, ये सब ज़्यादा famous है. BSNL. Right? So this all the question the manager needs answer to manage a firm, and all these answers, इन सब के आंसर ढूंढने के लिए मैनेजर को इकोनॉमिक्स अप्लाई करना पड़ता है, and that is known as managerial economics. क्लियर? किसी को इस पीपीटी में 16 स्लाइड है, किसी को कुछ पूछना है about this? Anyone want to ask anything? Right, clear? Yes, yesterday's recording सबको मेल कर दिया है, ठीक है. यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है टीम ने, और यूट्यूब पे ना अभी तो फ्री है, क्योंकि देखो इतने लोग हैं 370, और सब्सक्राइबर शाम तक तो टीम ने बताया था 150-60 ही थे, राइट? तो आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइबिंग. अभी तो चलो विदाउट सब्सक्राइब भी तुम देख सकते हो, बट वो एक लिमिटेड पीरियड तक रहेगा. उसके बाद तुम लोगों को यूट्यूब का जो देखना है ना, जिसने सब्सक्राइब किया और गूगल फॉर्म भरा है, उसमें जो ईमेल आईडी है, जो ईमेल आईडी से सब्सक्राइब करोगे और जो ईमेल आईडी गूगल फॉर्म में भरा है ना, उसमें तुम्हें वो वीडियो का लिंक आएगा यूट्यूब का, वो अनलिमिटेड टाइम फ्री रहेगा. जिसने वो सब्सक्राइब किया है और गूगल फॉर्म भरा है, दोनों किया है, उन सबको वो लिंक आएगा. डायरेक्टली यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस after June end, right? June end तक तो everyone will be able to access even without subscribing, right? So that is fine. But subscribe में तो तुम लोग का कुछ जाएगा ही नहीं, सिर्फ खाली एक क्लिक ही करना है, right? उसमें ना तुम लोग का कुछ पैसा जाने वाला है और ना कुछ. वीडियो देखना नहीं देखना वो तो तुम लोग का डिसीजन है. तुम लोग को जो टॉपिक हार्ड लगता है, what you want to learn, you can watch that videos, right? So this was the normal what is economics. We will come to the next PPT, session 2 PPT, which is also been shared. In this, उसमें तो वो PPT में मैंने क्या बोला, managerial economics, उसका features and scope, वो important है for theory to learn.
एंड इन दिस स्कैरसिटी, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी आ सकता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज स्कैरसिटी? और इसमें एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व होता है, पीपीसी या पीपीएफ बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आगे आएगा, राइट? तो व्हाट इज स्कैरसिटी? ये तो है कि स्कैरसिटी मींस मेकिंग चॉइसेस. Scarcity means making choices, है ना? Problem of choice arise at all level. मतलब जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है, हमें तो चॉइस करना ही पड़ता है. तुम लोग को भी एमबीए एडमिशन के पहले बहुत चॉइसेस मिला होगा, है ना, कि हम ये कॉलेज ज्वाइन करें या वो कॉलेज ज्वाइन करें. किसी ने सीईटी दिया होगा, सीईटी में क्या परसेंटाइल आया, उस पर क्या मिल रहा है. किसी को विदाउट सीईटी, किसी को ईयर वेस्ट नहीं करना है तो आईबीएस में आया होगा. मे बी इट वुड हैव बीन लास्ट चॉइस और फर्स्ट चॉइस. किसी का लास्ट चॉइस हो सकता है आईबीएस, किसी का फर्स्ट चॉइस हो सकता है, राइट? तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. जिसने भी जो कॉलेज में लिया एडमिशन, है ना, इट विल डिपेंड की चॉइस. यस, यस एंड सर, आपने अभी बोला ना कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्कोप, और इसके बाद क्या बोला था आपने? और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, फीचर्स एंड स्कोप is important than the scarcity concept. जो अभी मैं स्टार्ट कर, दिस इज इम्पोर्टेंट टू लर्न. तो मैं थोड़ा अपना पास्ट एक्सपीरियंस से इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, बिकॉज फॉर आईपीएस आई एम टीचिंग फॉर, दिस इज माय 6th ईयर. 5 साल मैंने पढ़ाया, ऑनलाइन ही सबको पढ़ाया है, राइट? बट स्टूडेंट से पर्सनली मिला भी हूँ. आफ्टर द लेक्चर स्टूडेंट्स कम, वी प्लान अ मीट, और काफी लोग मिले भी हैं. लास्ट ईयर के भी मैं भी ग्रुप में पूछ रहा था टॉपिक कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड है. So they were telling someone are placed in BlackRock, Deloitte, right? Then ENY, JP Morgan, Capgemini, HDFC Bank, ICICI Bank. So it's nice to interact. कि हाँ भाई, जिनको 2 साल पहले पढ़ाया था, 3 साल पहले भी पढ़ाया था, आज वो लोग नया काम कर रहे हैं. Some are happy, some are not happy. So I will take their review also. That also I can help you all. कि यहाँ पे कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी नहीं है, जो आईबीएस में आती है in the second year, right? So where you should take the job or not. Yeah. तो उनका फीडबैक और उनके साथ भी तुम लोगों का सेशन आई कैन अरेंज लेटर. अभी तो सेम 1 शुरू हुआ है, यू विल नॉट नीड नाउ, बट जो सेम 3 के स्टूडेंट्स है, फॉर देम आई मेड फ्यू इंक्वायरी, राइट? सो दैट इज जस्ट, मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ. ये एग्जाम में आएगा ही नॉट नेसेसरी, बट इम्पोर्टेंस फ्रॉम द पास्ट पेपर एंड पास्ट एक्सपीरियंस. Problem of choice arises at all level, individual level, household level, firm level, overall economy level. एक इंडिविजुअल का हमारा प्रॉब्लम है ना? जैसे अगर अभी तुम लोग अर्न नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पापा इतने ही पैसे देंगे. किसी के पास अनलिमिटेड पैसा भी होता होगा. बहुत लोग तो आउटस्टेशन से भी आए हैं जो पीजी में रहते हैं, तो उनको पेरेंट्स मंथली इतना ही देंगे, 20,000 25,000 रेंट भरना है, उनको सब खर्चा निकालना है, खाना है, पीना है ना? So they have to manage in that, how what they will manage. Household level पे पेरेंट्स को डिसाइड करना है कि जो इनकम है उससे कैसे हाउस को मैनेज करना है, what should be the first choice, second choice. एंड फर्म लेवल पे जैसे डिसीजन लेना होता है, वैसे ही ओवरऑल इकोनॉमी का भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है. ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट के पास भी अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड रिसोर्सेस है. उसको भी क्या खर्चा करना है, कहाँ खर्चा करना है, कैसे करना है, ये जो हर साल बजट आता है उसमें डिसाइड करना पड़ता है. द चैलेंज इज टू मेक चॉइसेस दैट मैक्सिमाइज वंस गोल. हमारा चैलेंज ये है, चाहे इंडिविजुअल है कि हाउसहोल्ड है कि फर्म है कि गवर्नमेंट है, ओवरऑल इकोनॉमी है, कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको हम कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? The allocation of scarce resources between competing requirement is the main economic problem. जो अभी तुम्हारे पास पैसा है ना, तो अभी तुम लोग कोई पीजी में रहते हो आउट स्टेशन, तो पैसा तो आया, बट व्हेन दोस्त हु आर कमिंग इन मुंबई फ्रॉम द अदर सिटीज ना, तो ऑब्वियसली मुंबई अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज फ्रॉम द पास्ट 4 years आई हैव सीन. तो जो पैसा आता है
और ग्रुप ऐसा हो जाता है, चलो क्लब जाके आते हैं, खर्चा बहुत होता है मुंबई में, क्लब जाओगे, इवन यू गो आउट फॉर अ डिनर, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट, तो सबका मन करता है, तो किसी के पास तो पैसा होता है कि क्लबिंग कर सकते हैं, बट कोई ऐसा होता है कि हाँ चलो पैसा इतना मिल रहा है उसको मैं क्लबिंग में यूज करूँ या मेरी और नेसेसिटी है उसमें यूज करूँ. तो एवरीवन हैव टू टेक द डिसीजन फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स, राइट. जो मुंबई में रहते हैं चलो उनको अच्छा, आउट स्टेशन स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना. तुम लोग में कोई है जो बाहर से रह रहे हो, बिकॉज टू मैनेज living and attending the college and managing the food, studying everything alone यहाँ पे रह के, so that is not that easy. But this is the time, तुम लोग यंगस्टर हो, तुम लोग अभी मेहनत करोगे तो एक अच्छा करियर के लिए तुम लोग मेहनत करो कि तुम लोगों को एक अच्छा प्लेसमेंट मिले. You are studying, working hard, paying so much fees. Why you are doing this, है ना, PGPL? So that your good career is built in future and you can earn and then grow. Now, what is this scarcity problem? कि obviously scarcity problem हमने बोला to choice, limited resources, and then you should also know what is opportunity cost. Opportunity cost of using a resource is the benefit that one could have got had the resource been put to its next best possible alternative. यानी तुम्हारे पास अभी समझो मेरे पास 1 लाख रुपया है और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, तो मेरे पास 2 चॉइस है कि मैं उसको एफडी में डाल दूं, वहां पे मेरे को 8% इंटरेस्ट मिलेगा, तो मेरे को साल का 8,000 रुपया मिल जाएगा. किसी ने बोला सर आप रिलायंस का शेयर खरीद लो, ये 1 साल में अभी 1500 में मिल रहा है, 2,000 हो जाएगा, तो वहां मेरे को 33% रिटर्न मिल जाएगा. किसी ने बोला अरे नहीं सर आप अपना बिजनेस खोलो, आप लेक्चर्स रिकॉर्ड करो, लेक्चर्स बनाओ ना, यूट्यूब पे डालो, उस पर सब पेड बाय करो, मेंबरशिप प्रमोट करो, उस पर खर्चा करो, फ्यूचर में उससे अच्छा लोग कमाते हैं, अच्छी इनकम हुई. तो मेरे पास अलग अलग चॉइस है. व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी मैंने समझो अगर रिलायंस के शेयर खरीद लिए जिसमें मुझे 30% रिटर्न मिलने का चांस है, बट दैट इज रिस्की. बट नेक्स्ट बेस्ट क्या था कि मैं बैंक एफडी में डालूं जहां मुझे 8,000 पक्का मिलेगा ही. 1 लाख का मेरा 1,08,000 100% होगा. सो व्हाट आई शुड डू? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. या जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ या तुम अपना समझो सर्विस कर रहे हो, तुम्हें सर्विस किया, बहुत लोग क्या होते हैं कि सर्विस करते हैं, वहां से उनको 1 लाख मिलता है सैलरी, एंड देन वो लोग जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू करते हैं. और वैसे ही एक एग्जांपल है एंटरप्रेन्योर्स का बहुत सारा, जैसे कोई समोसा सिंह करके है जिसके बहुत सारे फ्रेंचाइजीज है. इफ यू माइट हैव हर्ड और यू विल सर्च ऑन जोमेटो, स्विगी ना, वो हस्बैंड वाइफ ने एमबीए किया है और दोनों की सैलरी मिला के 5 लाख थी जब उन्होंने जॉब छोड़ा, ठीक है ना. और वो लोग ने ये समोसा का बिजनेस शुरू किया था विद 1 स्टॉल. अब वो लोग की फ्रेंचाइजी ओवरऑल इंडिया में है एंड देयर टर्नओवर इज, मंथली टर्नओवर इज इन करोड्स. तो जब उन लोग ने छोड़ा ना तो उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने उनको बोला था यार ये लोग पागल है, मतलब 4-5 लाख महीना आ रहा है कपल को, और क्या चाहिए यार, हम लोग तो खुश है, 4-5 लाख मिल जाएगा, अच्छे से लाइफ निकल गई है. तो उन्होंने वो 4-5 लाख छोड़ा एक बिजनेस शुरू करने, तो वो 4-5 लाख उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बिजनेस के लिए. यानी अगर वो बिजनेस से उनको 4-5 लाख रुपया नहीं मिला तो वो कॉस्ट हो गया एक्चुअली. अगर वो बिजनेस से 1 लाख प्रॉफिट भी हो रहा है अगर फर्स्ट वर्ष पे, तो एक्चुअली उनका 4 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रहा है. So choices implies sacrifice of other alternatives, hence cost of the choice will be evaluated in terms of sacrificed alternatives. कि जो sacrifice किया वो कॉस्ट हमारा जो अभी कर रहे हैं उसमें हम ऐड करते हैं. इकोनॉमिक्स अकाउंट्स में हम ऐसा नहीं करते. मतलब बिजनेस का अकाउंट्स जब बनाएंगे वो लोग, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं 4 लाख का सैलरी का छोड़ के आया तो वो 4 लाख भी मैं खर्चे में डालूंगा. नहीं, अकाउंट्स में खर्चे में नहीं डालोगे.
अकाउंट्स में तो जो खर्चा हुआ और कितने का बिका, जो डिफरेंस है वो तुम्हारा प्रॉफिट है. बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक कॉस्ट, नॉट अकाउंटिंग कॉस्ट. ये भी हम एक टॉपिक डिटेल में सीखने वाले हैं इन द अपकमिंग लेक्चर्स. What is the economic cost and accounting cost and how we calculate it? So by making a choice, right? Clear है ये what is opportunity cost, what is scarcity. Now what is the fundamental economic problem जो हर फर्म हर इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है कि what and how many goods and services should be produced. मुझे अगर बिजनेस शुरू करना है तो यार कौन सा बिजनेस शुरू करूं. चलो मैंने डिसाइड किया ये मोबाइल बहुत बिक रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट कैसे टाइप का मोबाइल बनाऊं, कितना बनाऊं, व्हाट एंड हाउ दिस गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड फॉर whom. जैसे मैं अभी तो सिर्फ IBS के लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ बिकॉज आई नीड टाइम ऑल्सो टू रिकॉर्ड लेक्चर्स, बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर्स तो राइट नाउ आई एम टेकिंग ओनली फॉर IBS Sem 1 and Sem 2. DY Patil and other colleges I have not started yet and I will take their lectures maybe later. तो बाकी वीडियोस भी मुझे रिकॉर्ड करनी है जो मेरा प्लान है फॉर द नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स, लाइक फ्रॉम जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज. तो फॉर whom? तो राइट नाउ आई एम प्रोड्यूसिंग ओनली फॉर IBS स्टूडेंट्स. जो यूट्यूब चैनल है वो सिर्फ IBS स्टूडेंट्स ही ज्वाइन करेंगे तो फायदा है. वो सब्सक्राइब तो बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, पुरानी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं जिनको वहां पे भी कुछ काम का नहीं मिलने वाला है. बट आई विल पोस्ट स्लोली, इट विल टेक टाइम. तो फॉर whom, व्हाट, हाउ, ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी है. ये फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है एक फर्म का, एक बिजनेस का, एक इंडिविजुअल का, एक इकोनॉमी का, गवर्नमेंट का, एवरीवेयर. इवन हाउसहोल्ड कि क्या खरीदें, कौन सी चीज कितने खरीदें, कहाँ से खरीदें, और घर में 5-6 लोग हैं तो किसके लिए. सबकी अपनी अपनी चॉइस है. किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए. अभी एक स्टूडेंट मिलने आई थी आज 2-3 घंटे पहले, उसको एयरपोर्ट्स चाहिए. पेरेंट्स बोले क्या करेगी एयरपोर्ट्स. तो सबकी अपनी चॉइस होती है, राइट. डिसीजन तो लेना पड़ता है हाउ टू एलोकेट. सो दैट इज स्कैरसिटी. स्कैरसिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा तो ये भी लिखना है, और जो ऊपर स्कैरसिटी का वो भी लिखना है. स्कैरसिटी पे 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना. और जब भी आंसर लिखते हो लेंथ पे नहीं जाना है, क्वालिटी पे जाना है, टू द पॉइंट लिखना है. बड़ा बड़ा आंसर लिखने की ट्राई नहीं करना. नो द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है वो अलग अलग टाइप की होती है. एक इकोनॉमी किसको बोलते हैं हम, यानी विद इन अ जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री. इंडिया की पूरी बाउंड्रीज है, उसको हम बोलेंगे इंडियन इकोनॉमी, US इकोनॉमी. तो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारी इकोनॉमी यानी इंडिया की इकोनॉमी. अब नेशन, एक नेशन, पूरे नेशन में क्या हो रहा है उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं. एंड हाउ द नेशन विल यूज इट्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज. तो जब हम नेशन एक इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि दिनेश सर को उससे फायदा हो रहा है, IBS के स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है या किसको फायदा हो रहा है. नेशन का जब डिसीजन लिया जाता है तो जनरली लिया जाता है कि नेशन के सारे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो. हाउ, हमारे डिसीजन से नेशन के सारे लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट हो, ऑप्टिमम बेनिफिट हो. तो जो इकोनॉमी टाइप होती है वो अलग अलग होती है. जो फर्स्ट है वो है मार्केट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन होता ही नहीं है. जो भी डिसीजन है वो बिजनेस फर्म्स लेती है. क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये बिजनेस पे डिपेंड करता है. गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवेन नहीं करती है. इंडिया में तुम्हें बिजनेस खोलना है तो गवर्नमेंट से पूछ के थोड़ी खोलोगे ना. तुम इंडिविजुअल फ्रीडम है ना कि तुम्हें जो बिजनेस खोलना है, कहाँ खोलना है, कौन सी जगह पे खोलना है, वो तुम्हारे ऊपर है.
ठीक है, हाँ, अगर कोई रूल्स है कि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसके लिए जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, बट यू आर an individual firm, an individual can decide what, where, how, and for whom. That type of economy is known as market economy or capitalist economy. ये clear है? What? Different types. तो market capitalist में क्या है कि what consumer decide what should be produced. Obviously अगर मुझे business करना है ना तो मैं तो डिसाइड करूंगा, बट मैं पहले सर्वे करूंगा ना मार्केट का कि यहाँ के कंज्यूमर को क्या पसंद आता है। अगर मेरे को मलाड में एक शॉप खोलनी है, फूड स्टॉल खोलनी है, तो मैं मलाड जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के पहले एक सर्वे करना पड़ेगा कि यहाँ के कंज्यूमर्स कौन सा फूड ज्यादा खाते हैं, या यहाँ पे कौन से फूड अवेलेबल है और कौन से ऐसी फूड स्टॉल है जो अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने सर्वे किया हुआ भी है, तो हमारे मलाड एरिया में ना कोई भी राजस्थानी जो सब फूड होते हैं ना, जो आगरा और वो सब साइड मिलते हैं, वेरियस लाइक प्याज कचौरी, दही वड़ा एंड ऑल दिस, वो सब तो किधर मिलते ही नहीं है। तो मैं तो बहुत स्टूडेंट्स को जिनको ऐसे फूड बिजनेस में इंटरेस्ट है, मैं बोलता हूँ तुम लोग ये बिजनेस तो यहाँ पे खोलो, यहाँ पे वड़ा पाव ये सब तो है, बिकॉज मलाड में ऐसे बिजनेस नहीं है, पराठा स्पेशलिटी पराठा बनाने वाले ऐसे। जो तुम लोग दिल्ली साइड जाओगे, नॉर्थ साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे ऐसे फूड स्टॉल्स बहुत होते हैं, हर गली में मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हर गली में वड़ा पाव वाला मिलता है। तो थोड़े जैसे ये है भिकाजी एंड और ये लोग सब, जैसे कि भगत ताराचंद, ये किधर किधर रेस्टोरेंट्स है, बट वो एक रेस्टोरेंट है, बट एक स्ट्रीट फूड बिजनेस एंड ऑल। सो यू हैव टू सर्वे अबाउट द मार्केट। तो कंज्यूमर जो खरीदेगा वही तुम बेचोगे ना, कि तुम अपनी मर्जी का कि भाई मैं तो ये बनाऊंगा, कंज्यूमर खरीदे या नहीं खरीदे तो तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो एक्चुअली प्योर मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा, और जो कंज्यूमर खरीदेगा वही बिजनेस फर्म बनाएगी। हाउ, कैसे बनाना है, ये ऑब्वियसली बिजनेस पे डिपेंड करेगा, ये कंज्यूमर नहीं बताएंगे कि कंपटीशन क्या है, कौन कौन और कॉम्पिटिटर्स है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्राइजेस है, तो उस बेसिस पे हम बनाएंगे। फॉर whom? तो ऑब्वियसली द पीपल हु हैव मोर मनी, उन लोगों के लिए बनाएंगे भाई जो तुम्हें कुछ पे कर सके पैसा, अगर तुम्हें प्रॉफिट कमाना है तो ये तो हो गया मार्केट और प्योर इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। द सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कमांड एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये पूरा डिक्टेटरशिप। जर्मनी में हिटलर तो सबने सुना होगा हिस्ट्री में, अभी तो वर्ल्ड में अभी भी है ये, अभी भी चलता है। चाइना में अभी भी ऐसा ही है, चाइना में अभी भी कमांड और सोशलिस्ट इकोनॉमिक ज्यादा है। इंडिया ही सबसे बड़ा एकदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम बोल सकते हैं। इंडिया में हर चीज का जितना फ्रीडम है ना, वैसा तुम्हें वर्ल्ड के शायद ही कोई कंट्री में मिलेगा। नॉट ओनली रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, रिलीजन, कास्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एनीथिंग। यहाँ पे इंडिया मुर्दाबाद बोल के भी तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलता, बट इन पाकिस्तान, ईरान, देयर यू कैन नॉट डू लाइक दिस। चाइना, वहां उसके अगेंस्ट तुमने कुछ पब्लिकली बोल दिया तो यू विल हैंग टू डेथ या शूट ही कर देते। तो इंडिया में जितना फ्रीडम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी गवर्नमेंट की चलेगी वहां की। इन कमांड और सोशलिस्ट इकोनॉमी द गवर्नमेंट आंसर्स ये क्वेश्चन, व्हाट, सेंट्रल प्लानिंग कमिटी, डिक्टेटर डिसाइड्स क्या बनाना है। गवर्नमेंट के पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे, कैसे बनाना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, वो बताएगी बिजनेसेस को किसके लिए बनाना है, वो भी गवर्नमेंट। तो चाइना और मैक्सिको अभी है वैसे टाइप की इकोनॉमी, पहले यूएसएसआर भी था, बट वो अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है। चाइना में गवर्नमेंट बहुत ये है, इसलिए चाइना इतना ग्रो कर रहा है ना। चाइनीज गुड्स हर जगह वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं, और चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी देन इंडिया अभी भी। यूएसए नंबर 1 पे है, चाइना 2 पे है, देन जर्मनी है, इंडिया 4th या 5th पे तो आ गई है।
4th पे आ गई है, $4 मिलियन जीडीपी इंडिया का गया है, $3 ट्रिलियन कुछ ऐसा था, अभी $4 ट्रिलियन भी क्रॉस हो गया है, और आने वाले सालों में $5 ट्रिलियन, और इंडिया नंबर 3 पे भी आ जाएगी। बट यूएस और चाइना को हराने के लिए ये जो इतनी हमारी जो पूरी प्योर इकोनॉमी है ना, तो नहीं आ सकती, क्योंकि जो बिजनेस है ना, बहुत पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट की थोड़ी डिक्टेटरशिप भी चाहिए, देन ओनली, बट वो इंडिया में नहीं पॉसिबल है। वैसे ही गवर्नमेंट की सब बुराई करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट होने दो, एनी पार्टी, हर गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म होता ही है। देन द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया है। प्राइवेट सेक्टर को तो कुछ भी अलाउड है, बट जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इसलिए हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड है। बट पब्लिक सेक्टर कंपनी हार्डली कुछ ही बची है, सारी कंपनीज डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, सारी कंपनी, अभी पहले तो इलेक्ट्रिसिटी भी गवर्नमेंट के हाथ में थी, जो रिलायंस टाटा के हाथ में चली गई है, राइट, अडानी, पहले रिलायंस का था, अडानी के हाथ में, अभी अडानी एनर्जी मुंबई, एयरपोर्ट्स भी, और काफी ये, और पहले तो मोबाइल भी सिर्फ MTNL होता था। तो आजकल डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, ज्यादातर सेक्टर्स प्राइवेट के लिए ओपन है, खाली एक डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर, ये एकदम पब्लिकली प्राइवेट के लिए ओपन नहीं है। रेलवे तो है ही नहीं ओपन, रेलवे में तो पूरा मोनोपोली है गवर्नमेंट का, और डिफेंस सेक्टर में कंपनीज है, बट उनकी भी फॉर्मेलिटीज होती है, गवर्नमेंट के अप्रूवल्स होते हैं। दोज कंपनी कैन वर्क in the defense sector, manufacturing of various equipments and all. और भी 2-3 सेक्टर होंगे जिसमें गवर्नमेंट का मोनोपोली हो सकता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, एंड दिस इज चाइना एंड मैक्सिको, एंड ज्यादातर इकोनॉमिक मिक्स्ड होती है या प्योर इकोनॉमी होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी अभी वर्ल्ड में बहुत कम है। क्लियर है इतना सबको, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? थियोरी है, बोर तो नहीं हो रहा है ना पढ़ते पढ़ते थियोरी? देखो इसमें सिर्फ सुनना होता है, मुझे थोड़ा बोर होता है थियोरी पढ़ाने में, तो मैं जनरली पढ़ाता नहीं हूँ थियोरी सब्जेक्ट्स, इसीलिए। इकोनॉमिक्स तो क्योंकि इट इज रिलेटेड टू माय कॉमर्स, मैंने पढ़ा है, और इट इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली यूजफुल, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है ये सब्जेक्ट। थियोरी ज्यादा है बट इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आगे, बट दिस सब्जेक्ट इज फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग देन द अदर थियोरी सब्जेक्ट्स। नाउ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर थियोरी पार्ट ए, पार्ट बी, या सीईसी में भी इस पे क्वेश्चन आएगा अगर ये है तो पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, कैसे उसका एक्सप्लेनेशन है, क्या है, ये भी तुम लोगों को समझना पड़ेगा। ये भी मेरी फाइल है जिससे मैंने लास्ट ईयर, उसके लास्ट ईयर पढ़ाया था, ठीक है ना। इसमें कुछ अलग है तो मैं बता देता हूँ पहले। इकोनॉमिक इज द इंक्वायरी, ठीक है, इसमें थोड़े डेफिनेशन अलग मिलेंगे तुम्हें। Economic is the science that studies human behavior as a relationship between ends and square means. So this all are the definition issued by the various economics. तो उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ सब है। और ये क्या है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने ऑलरेडी वहां पे भी पढ़ा था कि माइक्रो इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडी सिंगल इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री, ये पूरा मेकिंग फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। और ये तो तुम्हें वो टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा और सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल। तो माइक्रो मैक्रो तो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत हर जगह ही वो तो मिल जाएगा। आजकल तो गूगल, चैट जीपीटी सब कुछ है ही। फिर भी ये रोड्स है, कहाँ पे तुम्हें सिंपल लगता है वो लैंग्वेज तुम लोग क्या अपना बना सकते हो। अलग अलग मिलेगा तो 10, मेरे पास तो कितने पीपीटी होंगे ऑफ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, ये सारे फोल्डर्स में। आई वॉज कंफ्यूज कि मैं कौन से में से पढ़ाऊँ, तो मैंने करंट ईयर का प्रेफर किया। इतने सारे फोल्डर्स है यहाँ पे, राइट, एंड डिफरेंट और भी यहाँ पे भी है, इसमें डेटा में भी अलग अलग क्लासेस के, अलग अलग डिवीजन के। सो देयरफॉर
आई ट्राइड कि जो सिंपल है और जो लेटेस्ट है वो मैं शेयर करूं, बाकी तो तुम लोगों को जो बुक मिलेगी और गूगल चैट जीपीटी एवरीवन कैन डू ऑफ दिस टॉपिक्स। थियोरी में तो राइट ही आने वाला है, न्यूमेरिकल्स में ठीक है, यू कैन यूज माय फाइल्स बिकॉज वो थर्ड है जो तुम लोग फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर है। सो इन दिस नथिंग इज न्यू, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही व्हाट हाउ हु, ये याद रखना है। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो स्केर्सिटी में ही आएगा, स्केर्सिटी पे क्वेश्चन आता है तो यही है जो हमने वो वाले पीपीटी में भी सीखा। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? स्केर्सिटी, अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स बट लिमिटेड रिसोर्सेज। चॉइस करना, जो अभी हमने वहां पे सीखा कि चॉइस करना होता है हमें वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में, और नीड्स अलग होता है, वांट्स अलग होता है। नीड्स में क्या आता है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये तो मिनिमम चाहिए। वांट्स में क्या होता है? फैंसी फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बिग स्क्रीन टीवी, ज्वेलरी, कन्वीनियंसेस which are known as luxuries। प्यास तो पानी से भी बुझ जाएगी, बट किसी को कोक पीना है, किसी को स्टारबक्स की कॉफी भी पीनी होती है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर, मुझे तो स्टारबक्स की कॉफी पसंद है जो 400, 500, 800 की आती है, और आई डोंट नो, आई डोंट लाइक, नॉट बिकॉज इट इज कॉस्टली, आई कांट अफोर्ड, बट मैंने पिया, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जो मैं तो नॉर्मल पीता हूँ। और चाय तो मेरे को टपरी की पसंद है, नॉट बिकॉज इट इज इन 10-15 रुपीज, बट उसमें जो टेस्ट है, इवन मैंने जो अपना बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी चाय पिया है तो वो मजा नहीं आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन अवर चॉइस ऑल्सो, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो ट्रेड ऑफ है, स्केर्सिटी है तो हमें ट्रेड ऑफ करना है कि ये लेंगे तो ये नहीं ले सकते और ये लेंगे तो वो नहीं ले सकते, तो ट्रेड ऑफ उसको बोलते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब दो में से एक को चूज करना कि क्या करना है, राइट। और बहुत लोग आके सो जाएंगे कॉलेज से, बहुत लोग, तुम लोग यहाँ पे मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हो लाइव, है ना, तो कोई अभी खाना खा रहा होगा, कोई सोचेगा टीवी देखो, कोई रील देखो, तो सबका अपना चॉइस है। इफ यू आर वॉचिंग द लेक्चर, इसका बेनिफिट मे भी तुम्हें एग्जाम में मिले। वो लोग को अभी खुशी मिल रही है, एग्जाम में उनको टेंशन आएगा जो पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ रहे हैं। तो इट्स अ ट्रेड ऑफ इन एवरीथिंग, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, वही इसके अंदर भी है। हाँ, एक ये नया है, सेटिरिस पेरिबिस। ये वर्ड इकोनॉमिक्स में ना, जितने भी इकोनॉमिक लॉ है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सप्लाई, एंड ऑल द थियोरी एंड लॉ इन इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन दिस वर्ड सेटिरिस पेरिबिस। सेटिरिस पेरिबिस का मीनिंग क्या होता है? ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। इकोनॉमिक लॉ तभी अप्लाई होते हैं जब बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं होगी और लॉ में लिखा है वही होगा, तो ऐसे होगा। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलते हैं कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। लेकिन अगर बाकी चीज चेंज हो गई तो ये लॉ झूठ भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या कि समझो प्राइस बढ़ी और डिमांड भी बढ़ गई, क्योंकि सब लोगों की इनकम भी बढ़ गई। अगर सब लोगों की इनकम भी बढ़ गई, इंडिया में इनकम सबकी डबल हो गई और प्राइस भी डबल हो गई, तो भी लोग कम नहीं खरीदेंगे, लोग उतना ही खरीदेंगे। तो इनकम अनचेंज होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं होना चाहिए, वो सब चेंज नहीं होगा तो फिर लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो ceteris paribus, all other things remain unchanged. मार्जिनल एनालिसिस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले यहाँ पे भी वही है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। पीपीसी दोनों पीपीटी में देख लेंगे कहाँ इजी लैंग्वेज है क्या, बिकॉज ये पीपीटी में से तो फर्स्ट टाइम ही मुझे अभी किसी ने शेयर किया, और भी शायद एक दो जन ने शेयर किया है, वो मैं देख ही नहीं पाया बिकॉज आई वाज हैविंग डिनर एंड ऑल। और ये भी मैंने गो थ्रू नहीं किया है व्हाट इज रिटन, बट कहीं से भी पढ़ो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन showing various maximum combination of output that a nation can produce
with limited economic input in a fixed period of time. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल यानी एक कर्व है जो हम ग्राफ पे बनाएंगे, और वो कर्व हमें क्या बताता है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, आउटपुट का अलग अलग कॉम्बिनेशन, कि हमारे पास जो लिमिटेड इनपुट है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, उससे हम क्या आउटपुट बना सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन में. What are the various combination of output? मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, यानी अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सब मैक्सिमम बेनिफिट वाले हैं. तो वो कैसे बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं, वो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम ऐसा ही होगा. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम जो होगा वो ऐसा ही होने वाला है. जैसे जिसमें देखोगे ये वाले पीपीटी में, तो इसमें भी ऐसे ही है और इसमें भी तुम्हें वैसे ही मिलेगा. यानी ये शेप, तो ये जो लाइन है ए बी, इसी को, इस कर्व को ही हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. और ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे दो गुड्स है, दो गुड्स. जैसे इसमें एग्जांपल लिया है कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कंज्यूमर गुड्स, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स मिलिट्री गुड्स. कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे राइस हो सकता है, यहाँ पे व्हीट हो सकता है. जैसे कि इसमें क्या एग्जांपल लिया है, इसमें राइस और व्हीट का ही लिया. तो एक्स एक्सिस यानी राइस और व्हीट. समझो अगर दो ही कमोडिटी हमें बनाना है इंडिया में, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिकली तो दो कमोडिटी नहीं बनाता है कोई भी नेशन, बट जब हमें कोई भी इकोनॉमिक में हम कोई भी लॉ एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी थियोरी एक्सप्लेन करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं, हम कोई छोटा कि दो कंट्री है खाली वर्ल्ड में, दो कमोडिटी है, दो ही ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, टू मेक द एक्सप्लेनेशन इजी. तो अगर मेरे पास समझो कि एक लैंड है, मैं एक फार्मर हूँ, मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट लैंड है, और मेरे पास चॉइस है कि मेरे को राइस और व्हीट दोनों वहां पे ग्रो करना है. अब मुझे ये डिसाइड करना है कि कितने एरिया में मैं राइस करूं और कितने एरिया में मैं व्हीट करूं. मेरे पास इतनी लैंड है और मेरे पास इतना पैसा है जिससे कि मैं उसके सीड्स और उसके ग्रोइंग में जो भी इरिगेशन फैसिलिटी लेने में जो पैसा खर्चा होगा, उसके क्रॉप्स पे जो भी पैसा खर्चा होगा, वो सब मेरे पास कितना है, आगे क्या खर्चा होगा राइस और व्हीट पे, तो मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज से मुझे डिसाइड करना है. तो ये जो रेड लाइन है मेरी, ये रेड लाइन मतलब ये अगर मैं इतनी राइस बनाता हूँ, ये 75 व्हीट और 300 राइस, एक तो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है. दूसरा ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है. यानी कोई भी पॉइंट इस रेड लाइन पे है वो मेरे लिए बेस्ट है. दैट इज द बेस्ट ऑप्टिमल यूज ऑफ माय रिसोर्सेज. रेड लाइन के अलावा अगर मैंने कोई बनाया जो पॉइंट रेड लाइन के नीचे है या रेड लाइन के ऊपर है, उसका क्या मीनिंग होता है वो भी मैं बताऊंगा. बट रेड लाइन इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें वो बताता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन राइस और व्हीट का क्या क्या है. ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट है, 75 और 300, 70 और 500 भी बेस्ट है, 55 और 600 भी बेस्ट है, 40 और 800 भी बेस्ट है. और भी कोई पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे तो 550 और 60 भी बेस्ट है. यानी any point that lies on this production possibility curve is the best combination of output, maximum combination of output, efficient combination of output, optimal combination of output. Best, efficient, optimum सब words same है. I can produce only rice. तो यहाँ पे जो है ये ओनली राइस है, मतलब मैं 100 राइस बनाऊंगा तो व्हीट 0, 80 व्हीट बनाऊंगा तो राइस 0. आई कैन प्रोड्यूस ओनली व्हीट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. व्हाई इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोर्ड आउटवर्ड? ये ऐसे बाहर की तरफ क्यों जाए?
The type of land resources suitable for growing wheat is different than the land resources for growing rice. If a society wants more rice, then as you convert land suitability for wheat so that you can grow more rice, it will become more costly. We have increasing opportunity cost of producing rice in terms of wheat. यहाँ पे wheat और rice के लिए अब होता क्या, अगर हमारी land जो है वो wheat को ज्यादा सपोर्ट करती है, लेकिन सोसाइटी को राइस चाहिए, तो हमारे लैंड को कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ जाती है. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस. The reason of the PPC is bowed outward because of this increasing opportunity cost. देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये कम होते जा रहा है और ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है. जैसे कि पॉइंट ए है, इसका मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगर इकोनॉमी 10 टन ऑफ व्हीट यहाँ पे दे देता है, 100 से 90 प्रोड्यूस करेगा, तो वो 0 से सीधा 400 टन राइस मिलेगा. यानी एट पॉइंट ए समझो, पहले हम सिर्फ 100 टन ऑफ व्हीट बना रहे हैं और राइस 0 बना रहे हैं, लेकिन अभी राइस का डिमांड है, तो हमने अगर 10 टन व्हीट कम बनाया तो हम 400 टन ऑफ राइस बना सकते हैं. तो हम बोलेंगे कि 400 टन ऑफ राइस इज इक्वल टू 10 व्हीट. तो 1 राइस इज इक्वल टू 10 व्हीट अपॉन 400, तो 1 राइस इज इक्वल टू 0.025 व्हीट. बट जैसे ही हम आगे जाएंगे पॉइंट बी पे, तो वहां पे भी हमने 90 से 10 80 किया, 10 टन व्हीट कम बनाया, लेकिन 400 से 600 200 टन राइस ही मिला एक्स्ट्रा. तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है राइस बनाने का, एक राइस बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0.05 व्हीट हो गया, जो पहले 0.025 व्हीट था. ऐसे अगर हम और आगे जाएंगे पॉइंट सी पे, तो 10 टन की जगह हमें खाली 100 राइस मिलेगा, तो 1 राइस का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0.10 हो जाएगा. तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट keeps increasing as we move on the production frontier curve. Therefore, the PPC is bowed outward because of this increasing opportunity cost. ये भी क्वेश्चन आ सकता है, what is PPC and why it is bowed outward. तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना है, ये एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, and you can draw the diagram also. Explain with the help of diagram, ये भी important topic है. Each point on the PPF represents productive efficiency. ये कर्व पे जितनी भी पॉइंट है ABCD, वो सब एफिशिएंसी वाली है, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है. सारे पॉइंट तुम्हें डिसीजन लेना है, कितना व्हीट कितना राइस, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. This means that this economy is allocating all of its productive resources in the least costly way. There are an infinite number of points on the PPC where a society decides to produce is called allocative efficiency. अब इस पे कितनी पॉइंट बनेगी, मार्क तो ABCD की है, यहाँ मैं कितनी सारी पॉइंट्स बना सकता हूँ. और जो हम डिसाइड करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली सोसाइटी. फार्मर ये देखेगा ना कि राइस की डिमांड ज्यादा है कि व्हीट की डिमांड ज्यादा है, तो सोसाइटी कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ज्यादा बाय कर रहे हैं एज अ फार्मर, मैं वो ज्यादा बनाऊंगा, और जो मैं डिसाइड करूंगा वो उसको हम बोलते हैं एलोकेटिव एफिशिएंसी. मैंने अगर ये पीपीसी के जो पॉइंट है वो कॉम्बिनेशन बनाया, तो मैंने एलोकेटिव एफिशिएंसी यानी मेरे जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनको बेस्ट वे में एलोकेट किया. This represents the combination of wheat and rice most desired by the society. The whole PPC represents full production. और ये जो पूरा है PPC, एक पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी एलोकेटिव एफिशिएंसी, बट ये पूरा PPC क्या है, फुल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होता है, जब हमने अपने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए. यानी मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट लैंड है, मेरे पास 10 लेबर है,
तो मैंने पूरा 1000 स्क्वायर फीट लैंड और सारे 10 लेबर को काम पे लगा दिया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। बट मैंने खाली 900 स्क्वायर फीट यूज किया, 100 स्क्वायर फीट यूज ही नहीं किया, दो मैंने 10 लेबर यूज कर लिए, तो इसका मतलब मैंने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव नहीं किया। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जितने भी रिसोर्सेज है सबको हमने काम पे लगा दिया, सबको हमने एम्प्लॉय कर दिया। डू इकोनॉमिक्स ऑलवेज प्रोड्यूस ऑन पीपीएफ? क्या सब लोग जितने भी प्रोड्यूसर है, जितनी भी इकोनॉमिक्स है, सब लोग क्या यही पीपीएफ पे जो पॉइंट है उतना ही बनाते हैं? तो ऑब्वियसली नो, तो सारे देश एफिशिएंसी हो जाएंगे। What happens when economy operates at a point inside the PPF? कोई पॉइंट यहाँ पे है पीपीएफ के अंदर या कोई पॉइंट पीपीएफ के बाहर है, और क्या पीपीएफ के बाहर पॉसिबल है, और क्या पीपीएफ शिफ्ट हो सकता है? क्या ये जो कर्व यहाँ पे है, तो क्या ये इधर और ऊपर से बन सकता है क्या? ये तीन चीजें भी समझना तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका तो शायद पीपीटी शेयर नहीं किया है क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं होगा, बट मैं मेरे इसमें से बता देता। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो इस पीपीएफ के अंदर है उसको हम बोलेंगे इनएफिशिएंट आउटपुट कॉम्बिनेशन, इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। इस पीपीएफ पे है तो हम उसको एफिशिएंट बोलते हैं, है ना? और इसके अंदर कहीं भी होने दो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ऑल द पॉइंट्स inside या below the PPF are known as inefficient combination of output। इसका मतलब ये होता है कि जितने रिसोर्सेज है हमने सारे रिसोर्सेज यूज नहीं किए हैं, और अगर किए हैं तो हमने प्रोडक्टिव एफिशिएंसी अचीव नहीं किया है और ना ही एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव किया। सारे रिसोर्सेज यूज नहीं किए हैं तो वी हैव नॉट अचीव्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, और अगर सारे कर लिए हैं फिर भी पॉइंट अंदर है पीपीसी के, दैट मींस वी हैव नॉट अचीव्ड एलोकेटिव एफिशिएंसी। और अगर पीपीटी पे है तो वी हैव अचीव्ड प्रोडक्टिव एफिशिएंसी आल्सो एंड एलोकेटिव एफिशिएंसी आल्सो। और पीपीटी के बाहर पॉसिबल ही नहीं है, पीपीटी के बाहर कोई भी पॉइंट, कोई भी कॉम्बिनेशन अनअटेबल है, अनअटेनेबल है एंड अनअचीवेबल है। No economy or no firm can produce point beyond the PPC curve, because PPC curve क्या है? प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जितने रिसोर्सेज है सारे मैंने काम पे लगा दिए, तो वो कॉम्बिनेशन मिला। मेरे पास 1000 स्क्वायर फीट लैंड है, 10 लेबर है, मैंने सबको काम पे लगा दिया, तो मुझे वो आउटपुट मिला। अब 1000 से ज्यादा है ही नहीं, चलो लेबर में और ले लूंगा, लेकिन और लेबर हायर करके वही लैंड को यूटिलाइज करूंगा तो प्रोडक्शन को मैं ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। तो एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीसी इज अनअटेनेबल, अनअचीवेबल, एंड एनी पॉइंट बिलो पीपीसी इज इनएफिशिएंट, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी और एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, एंड एनी पॉइंट ऑन पीपीसी is productive and allocative efficiency both। ये सारे स्टेटमेंट आंसर में लिखने पड़ेंगे अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन होता है, वो सब यहाँ पे मिलेगा लिखा हुआ। मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन आगे रहेगा। All resources are fully employed. The resource base is not allowed to vary during the time period. Technology, which is the body of knowledge, remains constant. ये PPC के assumptions है। Point inside and outside जो मैंने बोला, inefficient production occurs at any point inside the PPC. All points along the curve are efficient points जो मैंने बोला, and all points outside the curve are unattainable due to scarcity of resources। ये तीन स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए। अपने वर्ड्स में लिखो, यहाँ लिखा है वो लिखो, या जो मैंने बोला था वो लिखो।
फिर शेप ऑफ पीपीसी कि वो बोर्ड आउटवर्ड क्यों है, वो तो हमने वहां से करा। बोर्ड आउटवर्ड मतलब कॉन्केव टू द ओरिजिन, ऐसा जो शेप होता है ना उसको हम कॉन्केव बोलते हैं। कॉन्केव और कॉन्वेक्स तो पता है ना तुम लोगों को, काफी लोगों को पता है व्हाट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, लिखा होगा ये तो स्कूल में, फिर भी भूल गए होगे तो। ये ओरिजिन होता है जब हम ग्राफ बनाते हैं तो, और जो ऐसे बाहर की तरफ बेंड होता है उसको हम कॉन्केव बोलते हैं, और जो ऐसे अंदर की तरफ बेंड होता है उसको हम कॉन्वेक्स बोलते हैं। बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये वही है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे वो स्लाइड में था कि वाई इट इज बोर्ड आउटवर्ड, तो उसको ही दूसरा वर्ड है कॉन्केव। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वाई इट इज बोर्ड आउटवर्ड या वाई द शेप ऑफ द कर्व ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव, तो बिकॉज रीजन वही है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना, राइट ना, क्लियर है। तो ये भी मैं भेज दूंगा, ये वाला स्लाइड भी, ये ब्लू वाला भी, इसको भी मैं नंबर कर दूंगा। देखो क्या क्या फाइल्स मैं भेजने वाला हूँ आज के लेक्चर के लिए, पहले तो वो भी बता देता हूँ। ये 01 और 02 जो करंट ईयर के फाइल्स है, ये पिंक फाइल्स है ना, जो ये तुम लोगों के फैकल्टी के है, जो जिनको ये फैकल्टी है, तानिया सिंह, है ना। तो ये दो फाइल तो उनके है, उसको मैंने 01 और 02 नाम दिया है। 03 जो है वो इको की SYJC की टेक्स्ट बुक है, तुम्हारे भाई बहन पढ़ते होंगे तो तुम लोग के पास होगी, या ये PDF फॉर्म में है SYJC महाराष्ट्र बोर्ड की 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक। ये भी तुम लोगों को बहुत काम आने वाला है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। और अभी जो मैंने एक फाइल से पढ़ाया, और जो ये ब्लू कलर की फाइल है, इसको मैं 04 नंबर दे दूंगा, उसका भी नाम रहेगा 04 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स 1, या दिनेश सर लिख दूंगा, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स दिनेश सर 04, राइट। तो ये 4 फाइल मैं शेयर करने वाला हूँ, और आज हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, किसी को कोई डाउट्स है तो, क्योंकि अभी जो इसके बाद है डिमांड एनालिसिस, नेक्स्ट कल के लेक्चर में मैं वो लूंगा, वो एक अलग ही टॉपिक है, राइट। और इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी में कुछ मिस हो गया होगा तो आई डोंट नो, शायद इतना ही था। किसी ने सिलेबस भी भेजा था जो मैंने ग्रुप में तो शेयर किया था, आई विल गो थ्रू इट ऑल्सो। एनी अदर क्वेश्चन और एनीथिंग एनीवन हैव टू आस्क, so they can ask me, right?